Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine. Okay class, today we will discuss topic 20.4. Yesterday we discussed topic 20.1, 20.2 and 20.3, in which we discussed about why water is so essential for our life. The second topic, in which we study about purity of water. In third topic we discussed about what is tap water and what is distilled water and how we can obtain distilled water. As well, yesterday we study about how we can pure water and how we can test water, what is tap water and what is distilled water and what is physical constant. ठीक है, but today we will discuss about topic 20.4, in which we discussed about substances present in water obtained from natural sources. ठीक है, in which we discussed about various substances. They may be harmful, they may be beneficial for us and within a limit. ठीक है, so let's start class. Substances present in water obtained from natural sources. Water from natural sources such as rivers, lakes, aquifers कहते हैं water reservoirs को, contains a number of substances which may be useful or harmful for our life. ठीक है, अब इसके अंदर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस पढ़ेंगे. दे मे बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, दे मे बी वेरी हार्मफुल फॉर अस, दे मे कॉज डिफरेंट डिजीजेस. ठीक है, okay class, the first one is useful substance. Dissolved oxygen means it's useful, it's not harmful. ठीक है, and how dissolved oxygen is found in water, which we used in our daily life. ठीक है, which is used for all living organism. They may be aquatic, they may be other animals which are living on earth, they may be living on trees, anywhere. ठीक है, oxygen. First of all, what is dissolved oxygen? Dissolved oxygen means which is mixed in water. ठीक है, okay. Oxygen enters the natural water from atmosphere through the process of diffusion. What is diffusion, beta? Diffusion is a phenomena, or maybe a process in which anything which is transferred from high concentration to lower concentration. It is also produced by aquatic plants. Aquatic plants mean there are those plants which are found in water. ठीक है, and algae in the process called photosynthesis. Photosynthesis is a process in which plants use sunlight, water and carbon dioxide and produce glucose, means energy, and oxygen which we are using. ठीक है, okay. This absorbed oxygen is then used by aquatic animals including fish to breathe and survive. The health and diversity. Diversity means class. Diversity is a variety of life. They may be birds, they may be fishes, they may be animals, they may be any species. ठीक है, of an ecosystem directly depends upon the amount of dissolved oxygen in a water. ठीक है, the next one is harmful substances and their effects on the quality of life. Harmful substances में first of all we will study about harmful microbes. अब microbes, they are bacteria, viruses and protozoa, those species which cause different diseases. They may be malaria, they may be cholera, they may be any disease. ठीक है, both surface and groundwater, which are vital source, basic source of fresh water, can be contaminated by various human activities. आपको पता है human activities में there are many activities. They may be destroying water quality by industry, mixing by industrial water, factories का जो पानी है उसके through. They may be sewage water, they may be by destroying जो हमारे हैं ये forest हैं. There are many activities. Harmful microbes like bacteria, viruses and parasites enter into natural water through human and animal waste. Landfills, कूड़े का ढेर. Agriculture runoff means top soil remove हो जाती है from soil. How it will remove? by rain water और by agriculture water. ठीक है, जब ज़्यादा fertilizers वगैरह यूज़ करते हैं हम, तो उससे हमारी जो agriculture की जो top soil होती है, जो बड़ी fertile होती है, वो remove हो जाती है. ठीक है, and waste water from industries, sewage from waste treatment,
प्लांट्स और फ्रॉम फॉल्टी स्पेक्टिक टैंक्स। ये मैनुअल टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जिसके अंदर हमारा जो सीवर वाटर है वो ट्रीट होता है, इसमें सॉलिड को अलग कर लिया जाता है, लिक्विड को अलग अलग कर लिया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। कैन रिलीज पैथोजेंस। अब उसके अंदर से जो वाटर है वो लीक आउट हो जाता है। जब वो लीक आउट होता है, जो हमारी अर्थ होती है, जो हमारी सॉइल होती है, उसके अंदर वो लीच होता है, वाटर अब्जॉर्ब होता है और वो हमारे जो दूसरा पानी है, जो हमारी अर्थ का पानी है जिसके ऊपर हमारी लाइफ इन डिपेंड करती है, उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। ठीक है। कैन रिलीज पैथोजेंस डायरेक्टली इनटू नियर बाय वाटर बॉडी। These bacterial content can cause such infection diseases as dysentery, typhoid, hepatitis and cholera। ठीक है। लिवर इन्फ्लेमेशन और हैज़ा इस टाइप की जितनी भी बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ की जो मलेरिया वगैरह की जो डिजीज़ हैं ये कॉज हो रही हैं। वाटर कंटेन होता है इसमें हमारे पास जितने भी जर्म्स होते हैं उसके थ्रू। ठीक है। ओके क्लास, हमने पहले पढ़ा था डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और नाउ वी स्टडी अबाउट हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है। ओके क्लास, नाउ वी विल स्टडी अबाउट हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। हैवी मेटल्स आप सबको पता है कोई भी मेटल हो सकती है। दे में बी कैडमियम, दे में बी एनी मेटल, दे में बी क्रोमियम, दे में बी लेड, दे में बी मर्करी। ठीक है। अब दीज आर हैवी मेटल्स एंड हाउ दे आर अफेक्ट फॉर आवर लाइफ एंड वेयर दे विल मिक्स इन वाटर एंड how they contaminate. Heavy metal like lead, mercury, cadmium and chromium and their compounds can enter in natural water through many routes. Different ways हैं। अब आप खुद देखें, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज का वाटर है जब वो हमारी सोइल सरफेस पे या एग्रीकल्चर में आएगा, रिवर्स के अंदर हम उसको ला के छोड़ देते हैं या हम उसको पॉन्ड्स वगैरह के अंदर ला के छोड़ देते हैं, तो वो हमारे वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे हमारी एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होती हैं, हमारे एग्रीकल्चर्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज में कंटेन्स हैवी मेटल्स and their compounds which are eventually released into rivers, other water bodies. Similarly, mining operations and use of fertilizer, mining operation तो थोड़ी बहुत जो खाने वगैरह उनकी खुदाई वगैरह में operations में, and use of fertilizers and pesticides can contaminate both ground and surface water। अब आपको पता है एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स को किल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करता है ग्राउंड वाटर और के ऊपर जो सरफेस होती है उसके साथ मिक्स कर जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो ग्राउंड वाटर की लेयर है या जो उसका पानी है उसके थ्रू वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और वो हमारे ग्राउंड वाटर को डिस्टर्ब करता है। ठीक है। उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है, वो हार्मफुल हो जाती है। विद हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, heavy metals and their compounds not only damage vital organ basic organs like liver, kidney, they can also lead to neurological problems जो हमारे ब्रेन और स्कल से रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। आर्सेनिक एंड कैडमियम ये दो ऐसी मेटल्स हैं जो रिस्क जिनसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहता है कैंसर का। ठीक है। यू हैव रिमेंबर दिस आर्सेनिक एंड कैडमियम। द सेकेंड वन इज़ प्लास्टिक। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड माइक्रोप्लास्टिक, जो हमें नज़र भी नहीं आते, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आर प्रेजेंट इन बोथ टैप वाटर जो हमारे टैप वाटर के अंदर होते हैं। ठीक है। अब ये क्या करते हैं क्लास, अब ये माइक्रोप्लास्टिक क्या करते हैं, ये टैप वाटर के अंदर होते हैं और बोटल्ड वाटर के अंदर होते हैं। हमें नज़र नहीं आते क्योंकि आपको पता है जो प्लास्टिक्स हैं जो हम थ्रो करते हैं अब उनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है। उनको पहले उनकी ब्रेक डाउन किया जाते हैं, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी ज़मीन के ऊपर सोल के ऊपर गिरते हैं, वो ग्राउंड वाटर के साथ अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। और वो हमारी वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। अब दीज टाइनी पार्टिकल्स कैन एंटर वाटर थ्रू वेस्ट वाटर, रेन वाटर व्हेन इट कैरीज प्लास्टिक डेब्रिस टू वाटर सोर्सेज एंड बाय डिग्रेडेशन ब्रेक डाउन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है। अब इसके थ्रू क्या होता है, प्लास्टिक टाइनी पार्टिकल्स हैव बीन फाउंड इन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक लंग्स, ब्लड। दिस पार्टिकल्स कैन डिस्टर्ब द इम्यून एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है जो हमारे डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। ठीक है। अब ये टाइनी पार्टिकल जो प्लास्टिक के होते हैं ये हमारे ब्लड वगैरह के अंदर मिक्स हो जाते हैं थ्रू जो हम पानी पी रहे हैं बोटल्स के अंदर जो हमारा पानी है वो मिलता है। अब उसके अंदर हमें नज़र भी नहीं आता क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है और ये डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट रूट्स के थ्रू हमारे पानी के अंदर क्या हुए जा रहे हैं, मिक्स हुए जा रहे हैं। द फोर्थ वन इज़ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स एंटर नेचुरल वाटर थ्रू वेदरिंग। वेदरिंग कहते हैं नेचुरल ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, चट्टानों की जो नेचुरल ब्रेक डाउन होती है उसके थ्रू ये क्या होते हैं हमारे नेचुरल वाटर के अंदर मिक्स हो रहे हैं। They can also enter in water through human sources such as agriculture, fertilizer, detergents and industrial waste water। अब ये उसके थ्रू वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। They are essential nutrients for plants and animals' life. They both are natural and essential nutrients for human life, animal life and plant life.
However, if amount of these compounds exceed a limit, they can affect the quality of water and cause eutrophication. अगर इनकी लिमिट ज़्यादा हो जाती है तो एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन. अब यूट्रोफिकेशन में क्लास क्या होता है? यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट ज़्यादा हो जाते हैं. अब नाइट्रेट्स और फॉस्फेट ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा जो रिवर्स हैं या जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है, एल्गी वगैरह की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है. जब उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है तो आपको पता है वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी. ठीक है, वाटर का कलर भी ग्रीन होना स्टार्ट हो जाता है और हमारी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है. और वही वाटर अगर हम इनटेक करते हैं तो दे कैन कॉज डिफरेंट डिजीजेस. ठीक है, अब हम इसको रीड कर लेते हैं. यूट्रोफिकेशन इज़ द name of the process which start in a water body containing excess of phosphorus and nitrogen nutrients. The excessive amount of these nutrients cause algae and other aquatic plants to grow excessively. This overgrowth of algae in turn can increase the dissolved oxygen level in water. ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है वाटर के अंदर, विच इज़ ओनली नॉट ओनली हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ बट कैन ऑल्सो डिस्टर्ब द इंटायर इकोसिस्टम. जो उस पानी को पिएगा तो वो उससे डिस्टर्ब होगा. ठीक है, वाटर बॉडीज़ होती हैं वो इनरिच हो जाती हैं नाइट्रेट्स और फॉस्फेट से. इस कंडीशन को हाइपोऑक्सिक डेड ओजोन भी कहते हैं, जोन भी कहते हैं. इससे क्या होता है, जितनी भी जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, जो एनिमल्स हैं जो वो पानी को इनटेक कर रहे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं. एज वेल हम लोग इसको इनटेक करते हैं अगर उस पानी को तो हम डिस्टर्ब होते हैं. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन, जो हमने फर्स्ट वन फैक्टर पढ़ा था, जो उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है क्लास, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी टॉपिक विच वी स्टडी टुडे, यू मे कैन आस्क इन योर ग्रुप्स. ठीक है क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज़.